So now that we are talking about writing, I want to know that what has been your best work, like what you feel is the best? I think is yet to come. Is yet to come. Yet to come. Because I feel I am still to own my craft, develop it more the way I want. I've been just more than lucky and really blessed. So was it a conscious call to, you know, make fusion songs because ज़्यादा बन नहीं रहे हैं? I had a feeling. On that feeling I made a song. वो song इस तरह से बन जाता था कि उसमें अपनी native sounds थी plus pop rock EDM you know amalgamation था sound space में. So that is one thing I feel. Can you sing few lines? उधारी सी जिंदगी में तू मिष्टी खोल दे रांझना, तू मिर्जा मेरा मैं पीबा तेरी, तू वेखता ले एक बारी, हंजू लुको के हंस गई, तू वेखता ले एक बारी. Can you just tell me that क्या सोचकर आपने इस तरह की एक प्लेलिस्ट बनाई है? Last album had songs that they were mostly pop, Party Numbers, Paris, Latifa, sort of like gun culture. Dolly was a happy-go-lucky girl, feeling very happy, found the, you know, ऐसे वाले थे. एक दो गाने थे उसमें मर्यादा and How Could You, they were serious. Others were like really having fun. Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. कुछ लोगों के साथ ना मुलाकात इतनी खास होती है कि हम उनको एक बार फिर से बुला ही लेते हैं. वैसे ही कुछ महीने पहले हमने पॉडकास्ट किया था नेहा के साथ. मैं बात कर रही हूँ नेहा तोमर, ऑफ कोर्स नेटो द आर्टिस्ट के नाम से आप उन्हें जानते हैं. और आज हमने सोचा कि क्यों ना नेहा के साथ वापस एक मुलाकात हो ही जाए, उनसे ढेर सारी बातें जो करनी थी. सो वेलकमिंग नेहा टू ऑसम टीवी. हाउ आर यू डूइंग? I'm good, Astha, and thank you so much for calling me back on Awesome TV. नेहा, you know, you have really good vibes. And last time भी जब हमने conversations की थी, काफ़ी बातें थी जो अधूरी रह गई थी. And काफ़ी emotional conversation थी वो. तो हमने सोचा कि यार अब थोड़ा और जानते हैं नेहा के बारे में. नेहा के गाने आ रहे हैं बहुत सारे. So of course जानना तो था ही. Tell me, how are you doing? I'm doing great, Astha, and I can't thank the team of Awesome TV more than enough because I'm nearing the finishing of my another album. And there are new songs that I wanted to discuss, and what are the better way than coming on Awesome TV and share it with you all. And yes, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी. So let's do it today and have some more fun than last time. Yes. Definitely. जैसे आपने कहा that you know आपके नए गाने आ रहे हैं. So tell me something about it. Like give me some deeper insights. Okay. So right now I've been very tight-lipped about it because it's in the making. बट अभी इस न्यू एल्बम में कुछ तमिल सॉन्ग्स हैं, यस, एंड इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, एंड ऑफ कोर्स माय मदर टंग हिंदी. सो इट्स अ मेडले ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई एम गोइंग अ लिटिल बिट सोलफुल सिनेमैटिक वाइब. सो या. अच्छा, व्हाट हैज़ बीन चैलेंजिंग एज इन आपने पहले भी तमिल लैंग्वेज में गाना गाया है या इज दिस द फर्स्ट टाइम? सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बट आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न तमिल. सो अभी क्या हुआ है, बिकॉज मेरी रीबूट में कुछ ऐसे गाने थे. आई हर्ड some people saying, you know, this would look really nice if you'll sing in this language. I have friends from South India. There was a couple of them are Tamilians, and I like the language. I like a lot of languages, but I thought why not? Yeah. So reboot के कुछ गाने हैं जो मैं तमिल में कर रही हूँ. Same melody, same theme, songs, lyrics, everything, and a very acclaimed, very talented lyricist from Tamil cinema, Karthik. He is writing lyrics for the same songs. So वो हैं. So it's the first time I'll be singing Tamil, Astha, and I'm super duper excited. But you know what happens is, what I have heard is the singers बहुत सारे अलग अलग languages में गाने गाते हैं and काफ़ी easily pick up भी कर लेते हैं. अब वो किस way में होता है, कैसे होता है, हमें idea नहीं है. तो आप थोड़ा सा बताइए that ऐसे on and off करना, दूसरे languages में गाना गाना, वो कितना easy या difficult होता है आपके लिए? For me, because I'm just beginning, but मैंने बहुत senior कलाकारों को देखा है because they shift very easily, and because music is one language, one form of art that really connects. So I can speak from my experiences. So in my personal experience, I feel for an artist, singer, performer, actor to speak in another language is just
an expression. It's just one flow, one bamboo through which they are just flowing their emotion. Then it doesn't matter what language, beats, because tomorrow if you see, I'm talking about singing, acting, all performing arts. अगर एक एक्टर को बोला जाए कि बिना बोले भी आपको एक गूंगे की तरह और एक बहरे की तरह करना है, तो वो उससे भी एक्सप्रेस कर देगा, वेयर देयर इज़ नो लैंग्वेज. और लैंग्वेज अपने आप में मिल जाना, चाहे वो कोई भी एरिया की लैंग्वेज हो, देन इट इटसेल्फ इज़ अ एम्पावरिंग टूल. सो आई फील इट जस्ट हैपन्स. There is no logical I feel it's very all divine connect when artists switch languages, and also skill set hota hai, they really prepare, they hear the diction, like I'm trying to learn a diction, pronunciation, to wo sab hota hai. But keeping that aside, basic training and everything, it is just working on your craft and connecting your inward side. Wow. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ओके, दैट आपके इतने सारे डिफरेंट गाने आ रहे हैं, तो डू यू योर सेल्फ राइट द सॉन्ग्स, कंपोज इट एंड एवरीथिंग, और डू यू हैव अ टीम फॉर दैट? थैंक यू सो मच आस्था फॉर आस्किंग मी दिस, बिकॉज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, और अभी लाइक यू नो आई हैव रिटर्न फ्रॉम माई US टूर, तो वो पूछते हैं ये गाने आपके हैं, तो मैं बोलती हूँ हाँ जी, मैंने जिन गानों को गाया है, परफॉर्म किया है, तो ये मेरे ही कंपोज करे हुए गाने हैं. देन वो बोले लिरिक्स किसने लिखे हैं, मैं बोले लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं. तो इट इवन इफ़ यू से कि हाई दिस इज़ नीतू द आर्टिस्ट, आई एम सिंगर, सॉन्ग राइटर, परफॉर्मर, तो उसमें इतना क्लैरिटी से नहीं जाता है. तो मैंने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था, उधर तो वो बिल्कुल ही पूछना चाह रहे थे कि मुझे तो लगा सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट होता है. मैंने बोला सॉन्ग राइटर कंपोज़र के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक शब्द है. सो लिरिसिस्ट is one who writes and gives words to the entire body of music. So yes, I write my own songs. So far अभी तक की सारे जितनी भी albums आई हैं और जो आने वाली हैं, like this my 5th album, 4th album, both have songs written by me and composed by me and sung by me. Wow, that's incredible. I think this is one thing I can say that you multitask so well. एंड आप इतना कुछ कर लेते हो एक साथ, बट कभी कभार डिफ़िकल्टी नहीं हो जाती दैट आई हैव टू राइट, आई हैव टू सिंग, आई हैव टू डू दैट? कभी नहीं लगता कि यार आई शुड हैव अ टीम फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स? I feel for now I am exploring to collab with people. I have got some requests, and also I aspire that certain people should write lyrics for my melodies. And I'll be very honest, Astha, क्योंकि जब मैं गाने बना रही थी तब नोबडी केम फॉरवर्ड कि नहीं हाँ मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हारी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लग रही है मैं लिख देता हूँ, तो कोई सामने से आया नहीं. प्लस मैं जब गाने बनाती हूँ ऑटोमेटिकली उसमें शब्द अपने आप लाइक यू आर हमिंग अ मेलोडी, अपने आप पिरोए जाते हैं शब्द, वो आ जाते हैं बस. तो लिरिक्स लिखने में कभी तकलीफ़ नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम डूइंग समथिंग एडेड वर्क. ओ माई गॉड, ये मतलब मल्टीटास्किंग जैसा नहीं समझ आया. इट्स लाइक ब्रीदिंग एंड ईटिंग फॉर मी. सो मेलोडी मेकिंग के वक्त ही या लिरिक्स भी आते हैं, तो वो इट्स अ वेरी इंटरट्वाइंड प्रोसेस फॉर मी. बट आई डू एस्पायर टू कोलैब कि कोई मेरे गानों पे लिरिक्स लिखे, एंड आई हैव अ लिस्ट ऑल्सो. बट सून, like we have such talented people in our country, I definitely want to collab with them whenever the time will be right. So now that we are talking about writing, I want to know that what has been your best work, like what you feel is the best? I think is yet to come. Is yet to come. Because I feel I am still to own my craft, develop it more the way I want. I've been just more than lucky and really blessed. क्योंकि मैं सीख रही हूँ और भी इसे बेटर करना चाहती हूँ अपनी आर्ट को. मैंने हाल ही में दोबारा पिकअप किया है कथक भी, बिकॉज मैं आई हैड बीन अ कथक trained dancer as a kid. I've done it for 3-4 years. I picked it up again to somehow accentuate my skill set in music. So my best work is yet to come, Astha. So I would just say that. So we are also waiting for that. So talking about you singing also and then dancing also on the stage, कभी nervousness हो जाती है that what if I miss a beat and something like that? नर्वसनेस से ज़्यादा ये लगता है कि क्या लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज अभी तक ये रहा है कि पसंद आया है बस. कभी कभी what happens, we are dancing, I go with a crew of dancers, and some of the songs I am singing live, some of the songs are like
स्पेनिश रैप भी होता है, तो उस पर वी आर डांसिंग सो मच एंड आई एम लिफ्टेड अप इन द एयर एंड स्टफ. सो कुछ कोरस पार्ट हमारे +1 पे चलते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट आई डेफिनेटली सिंग. व्हाट इफ आई मिस अ बीट, वो मुझे होता है. सो आई लाइक लाइव बेटर देन सिंगिंग लाइव. सो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दैट बिकॉज मुझे पता है एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल. बट वो जो समटाइम्स ऑर्गेनाइजर्स भी बोलते हैं कि आप डांस करें तो वी वांट अ सर्टन टाइप ऑफ साउंड क्लैरिटी एंड एवरीथिंग, तो आप कुछ अपना ट्रैक प्लस पे ही रखिए, आप सिंग कर सकते हैं. तो वो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस देता है. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टचिंग थैंक्स टू यू, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो प्लस पे गाते हैं. आई एम अवेयर दैट आई एम अज्यूमिंग पीपल आर अवेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और बहुत वी हैव सो मेनी सिंगर्स हु आर टोटली सिंगिंग लाइव इन लाइव शोज़. सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में लाइव शोज़ का मतलब लाइव गाना होता था. बट बिकॉज नाउ आई एम इन अ मार्केट वेयर यू आर परफॉर्मिंग डांसिंग लाइक शकीरा है, जस्टिन बीबर है, वी हैव सीन देम डू परफॉर्म ऑन प्लस, ही केम. सो ये एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू गोइंग फॉर ग्रैंड कॉन्सर्ट्स दे कीप लिटिल बिट. बट आई हैव सीन आर्टिस्ट परफॉर्म लाइव एज वेल. तो मुझे नर्वसनेस तब होती है कि वो जो चल रहा है ना, अगर वो शब्द मिस हो गया तो मोर देन परफॉर्मिंग एंड एवरीथिंग. लाइव में आई एम लाइक गुड, ज़्यादा से ज़्यादा सुर टूट सकते हैं ना ज़्यादा, तो आप वो करेक्ट कर लोगे अगले उसमें, आपको पता है. और लाइव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ये नर्वसनेस ज़रूर होती है. अच्छा, हु हैज़ बिन योर फेवरेट लाइव परफॉर्मर? In like I can name so many people, but I can say Sunidhi Chauhan. I mean, she has been doing this, but now she's again back with a bang and it's so much inspiring. Of course, Padma Shri Kailash Kher ji and Amy Winehouse, Bruno Mars, Shakira. Like in my previous broadcast also, these are people I grew up while I was growing up. Like I grew up watching them perform. हमारे देश में ना इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, फिर भी अगर आप देखो तो जैसे कोल्ड प्ले आया था, ठीक है, कोल्ड प्ले के लिए मतलब आई गेस विद इन 10 मिनट्स इट वाज हाउसफुल, सब कुछ बुक हो गया था. बट इफ़ यू गिव मी एन ऑप्शन कि कोल्ड प्ले जाना है या अरिजीत सिंह को सुनना है, मैं 100 टाइम्स अरिजीत सिंह को ही चूज़ करूँगी. बिकॉज अरिजीत सिंह ही इज़ मैजिक, ही इज़ मैजिक. बट क्या हो रहा है आजकल इंडिया में दैट लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट के टूवर्ड्स ज़्यादा जा रहे हैं? आस्था, ये तो मुझे नहीं पता बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मुझे मार्केटिंग पब्लिसिटी की बहुत कम नॉलेज है. मैं अपने लाइक आई मेक माई सॉन्ग बट आई रियली स्ट्रगल टू मार्केट दैम. मुझे अब बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंटली रिलीजिंग थोड़ा थोड़ा मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ. बट क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्यू एल्बम्स एक लेबल ने रिलीज़ करी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, एक टीम बैठी हुई थी. बट जब मैं इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ तो आई एम ट्राइंग टू लर्न, बट आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट marketing or publishing my songs. As an artist, I just know how to, I'm trying to figure out how to make my craft better and better. But it's a very beautiful thing because it's going on a lot on our digital space and discussion is coming up. I love Coldplay and I love Arijit Singh. तो likewise I think हम दोनों ही अरिजीत सिंह के शो के लिए जाएंगे. Having said so, that doesn't mean we don't love songs of Coldplay. Of course. Yeah. But obviously, एक तो it's our mother tongue. And जो चीज़ आपकी मदर आ गई जहाँ पे वो आपको naturally incline करेगी. तो अगर हमारे पास ऑप्शन है Coldplay and अरिजीत, so we'll definitely go for Arijit, like you and me. है ना? Of course. I mean, Arijit Singh is an emotion. Trust me. मतलब जब वो गाना गाते हैं, जिस तरह से वो गाना गाता है, जिस तरह से वो अपने फैंस को ट्रीट करते हैं, it is so good. True आस्था, true. So मुझे पता नहीं कि मैं कभी Coldplay के शो में नहीं गई, but I love his songs and albums. And I believe he's a good human being also, जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है. And I feel as an artist, both are amazing artists, but we both have our personal choice. Yes. So that bit. And so why audiences are going for international artists is a thing to wonder. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज एक क्रेज़ डेवलप कर देते हैं. हमारे इंडियन आर्टिस्ट को इतना मार्केटिंग, इतना वो हाइप क्रिएट नहीं करते हैं. हमें पता है रोज़ तो मूवीज़ में गाने सुन रहे हैं. कोल्ड प्ले इंडिया आया है, एवरीबडी वांट्स टू सी, एवरीवन वांट्स टू बी कूल नाउ. तो ये एक आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद समथिंग दैट हैज़ कम फ्रॉम वेस्ट. एक कॉलोनियल मेंटालिटी से आ रहा है.
बट अगर पॉजिटिव देखें, बिकॉज इट्स जस्ट यू नो इट्स लाइक अरिजीत के शोज तो इंडिया में हर साल चलते रहेंगे ना, कोल्ड प्ले का साल में शायद एक बार आएगा, सो दैट्स वाई ऑडियंसेस गेट्स रियली ऑडियंसेस गेट वेरी अट्रैक्टेड कि इस कोल्ड प्ले के शो में जाते हैं। डेफिनेटली, बिकॉज पीपल कनेक्ट टू हिम एज वेल। कोल्ड प्ले जो है, ठीक है, अरिजीत सिंह तो करते ही हैं, कोल्ड प्ले से भी लोग काफी वेरी इमोशनल सॉन्ग्स ही मेक एंड वेरी सोलफुल सॉन्ग्स, वेरी रिलेटेबल सॉन्ग्स ही मेक्स एंड हिज लिरिक्स एंड सॉन्ग राइटिंग इज एट पार। सो मुझे ज़्यादा नहीं पता मार्केटिंग में क्या चल रहा है, बट आई फील बिकॉज यू आस्क्ड मी, वो एक क्रेज़ होता है ना कि ये शायद अभी इंडिया से चला जाएगा, लिमिटेड है। अरिजीत तो अभी लाइक यू नो नेक्स्ट मंथ भी कुछ और शो होगा उनका, तो हम विल यू नो कैच, मे बी उस वजह से हो सकता है। अच्छा, बट इफ आई आस्क यू योर फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स, व्हाट वुड इट बी? यार लंबी जुदाई रेशमा जी का, आई फील। और रोमांटिक में आबिदा परवीन जी का यार को हमने जा बजा देखा, बट उसका टाइटल कुछ और होगा। हाँ, सो ये है। और या दीज टू आई थिंक, जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड मी तो दीज टू केम, बट ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, प्लेलिस्ट। ऑफ कोर्स, अगर मैं अभी आपको कहूँ आपका फ़ोन देखकर आपके प्लेलिस्ट में चेक करो तो काफ़ी गाने निकल जाएंगे, वो तो है ही। बट आप मतलब गज़ल में इंटरेस्ट रखती हैं? यार मैंने बहुत कम गज़ल सुनी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने जो गज़ल सुनी है वो थोड़ी बहुत जगजीत सिंह जी की होंगी, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू ब्लफ एंड आई रिफ्रेन फ्रॉम, तो आई एम नॉट गुड एट। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट जॉनर? जॉनर या मेरे बहुत मल्टीपल जॉनर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। EDM आई एम एक्सप्लोरिंग, EDM पॉप वो तो मैं बनाती ही हूँ। EDM pop is one genre I really, fusion I really love, yeah, because I Any fusion song if you want to name, because I am not much aware about fusion. तो मेरे जो गाने हैं दिल दा चोर, आपके गाने फ्यूजन EDM पॉप, सो वो फ्यूजन है बिकॉज अगर मैंने उसमें नेटिव साउंड्स डाली हैं तो सडनली देयर इज़ अ स्पेनिश रैप यू नो कमिंग इन, एंड देन EDM पॉप वापस आके आपकी भंगड़ा बीट या आप शहनाई बजने लगती है, सो वैसे वाले। और अगर कोई फेमस फ्यूजन बात करें, पसूरी है ना, कितना इट्स अ फ्यूजन रॉक पॉप, सो वो बहुत अच्छा है। कोक स्टूडियो जो बनाते हैं, कोक स्टूडियो के तो गाने, ओ वाओ, गोतिलो तो फ्यूजन है ना, नेटिव इज ब्रिंगिंग ऑल साइंस ऑफ ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिक, सो आई थिंक दोज सॉन्ग्स, I think more of fusion should be made and should be appreciated. Of course, and I think appreciate होता भी है आस्था, because the kind of response such songs get, it just takes the artist next level, and globally it is appreciated. So was it a conscious call to make fusion songs because ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, और आपको लगता है that maybe here if you make fusion songs आपके लिए बहुत सही हो सकता है, या मे बी आपको और वाइड ऑडियंस जान सकती है, आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी करते हो, वहाँ पर भी लोग कनेक्ट करते हैं, स्पेशली US एंड ऑल में आप जाओगे तो भांगड़ा बीट्स ये सबसे लोग कनेक्ट करते हैं। I quite like your insight. I never thought this question will be thrown at me. So I'm very happy you asked me. So Asta, when I started to compose my songs, I was and I'm still to quite a lot of extent work in progress composer. तो जब मैं जो बना रही थी ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ बन के आ रहा था जिसमें मेरी नेटिव साउंड्स प्लस वेस्टर्न बीट्स थी। Then my programmer who was working on my songs and audio engineers also who were recording me, they said, it's quite rock pop, it's quite fusion. तो वहाँ से मैंने genres explore करने शुरू किए कि यार ये मतलब ऐसा, I thought I'm making a song. तो कोई genre सोच के आप गाना बनाते नहीं हो unless you're working for a film, उनका कुछ brief है कि हमें ऐसा ही चाहिए. So I am working on independent album. So ऐसा मेरे पास कुछ brief नहीं था कि in this bracket only I have to be. I had a feeling. On that feeling I made a song. वो song इस तरह से बन जाता था कि उसमें अपनी native sounds थी plus pop rock EDM amalgamation था sound space में. So that is one thing I feel. Fusion rock pop EDM. जैसे आपने तो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए भी देखा है एंड काफ़ी लोगों के लिए ओपनिंग भी की है, तो क्या ये सच है कि फैंस कभी कभार इतने क्रेजी हो जाते हैं कोई आर्टिस्ट के लिए दैट दे जस्ट वांट टू हग एन आर्टिस्ट और दे जस्ट वांट टू फील द आर्टिस्ट एंड देन दे आर लाइक कि एक बार टच कर दो या छू लो सिर्फ, ये सारी चीज़ें होती हैं?
आस्था मेरे साथ फिलहाल तो नहीं हुआ. Fans are pretty good with me, and also I've yet to make that kind of name where fans go crazy and gaga. But I have seen them with really big, I'll not name. They were ready to cut their wrist, and yeah, there was one incident with me. That guy actually was following my car. And I was just thinking maybe somebody is jogging. US है तो कोई भी odd hours पे the person might be jogging. But after 300-400 meters मुझे लगा ये हमारी कार के पीछे ही दौड़ रहा है. So that one odd incident was there, and this person just wanted a picture. And with someone like me who has just performed and is not a Shakira, is not a Sunidhi, is not a Shreya. So हाँ, and imagine वो celebrities के साथ क्या करते होंगे. I've heard crazy stories like the girl has etched the name with blade, some unhealthy stuff, and craze is next level. Like they will not let you close the window, and they have their hand right inside the car, and they're like, no, please come out and give us a picture. Please come out and give us a hug, and it's like all. Yeah, like during live concerts also we see that लोग वहाँ पर banners, posters लेकर आ जाते हैं, marry me. Yes. Oh, this happened during my Geo World Drive thing. So कुछ बच्चों ने किया था. Some teenagers were, they were doing like that. And a lot of people अभी तो आजकल चल रहा है that they are asking for kiss as well, but thank God ये मेरे साथ नहीं हुआ. I'm still at a very nascent stage, but हाँ नहीं मेरे साथ ये नहीं हुआ. हाँ मतलब literally लोग क्या कुछ कर जाते हैं आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स में भी. आजकल लोग भी मतलब एक दायरा होता है, कितनी बार लोग भी वो क्रॉस करते हैं, कितनी बार सिंगर्स के साइड से भी वो हो जाता है. काफ़ी सिंगर्स नहीं बट कुछ हैं जिन आई थिंक वी बोथ नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये एक मुद्दा बन जाता है. बट हाँ, ऐसी चीज़ें लाइव कॉन्सर्ट्स में काफ़ी होते हुए हमें नज़र आ रही है, इसलिए मुझे लगा दैट आई थिंक आई शुड गेट आउट दिस टॉपिक. एंड हाँ, एवरीथिंग हैज़ बीन, आई हैव बीन वेरी लकी, थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी सोबर सो फार. That's good. So far, so blessed child, sunshine child, daughter of sun. So मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है लाइफ में. टच वुड. अच्छा, मुझे बताओ सबसे पहला रोमांटिक गाना आपके दिमाग में कब आया कि आपको लिखना चाहिए, और आप क्या फील कर रही थी उस वक्त? गाने के नाम से बताना और शुरुआत करो. चलो. ओके, सो पहला मेरा रोमांटिक गाना जो मैंने सबसे पहली बार लिखा था वो रांझना है. आई ऑल्सो, दैट्स द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई फर्स्ट एल्बम, फर्स्ट रिलीज्ड सॉन्ग. सो रांझना यार बड़ी बेकार कहानी है बिकॉज मैं रोमांटिक फील नहीं कर रही थी. बट आई फाइनली क्विट अ जॉब थिंकिंग कि अब मैं बस म्यूज़िक ही करूँगी, और मैं बहुत खुश थी. एंड आई हैड गॉन टू दिस प्लेस कि आई वर्कड फॉर दीज मैनी मंथ्स एंड आई हैड गिवन माई आई हैड गिवन माई नोटिस ऑल्सो. सो दे सेड वी विल नॉट पे यू फॉर द लास्ट मंथ. आई लाइक इट्स ओके, I am just free. Now I'll just make songs. अब मुझे कुछ लेना देना. So I was to move to a smaller place because obviously I was quitting my job, so I had to figure out something. So I moved to a smaller place where the bills will be less. And I was just so happy कि अब बस मैं गाने बनाऊंगी. मेरे बस कम से कम 3, 4, 15, 20 दिन होंगे कि मैं बस अपने जो मैंने गाने लिखे हैं वो मैं बनाऊंगी. तो उस वक्त I was walking on one of the roads. Nicely walking, and it was evening, I remember 7:38 p.m. and I was humming this, and वो शब्द भी ना, उधारी सी जिंदगी में तुम मिष्टी घोलते रांझना. So वो ना because वो हाँ. Can you sing few lines if possible? थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और थोड़ा सा गा लीजिए. उधारी से जिंदगी में तू मिष्टी घोल दे रांझना, उधारी से जिंदगी में तू मिष्टी घोल दे रांझना. तू मिर्ज़ा मेरा मैं बीबा तेरी, तू एक ताले एक वारी, हंजू लुको के हंस गई, तू एक ताले एक वारी. ओ रांझना, ओ रांझना, ओ रांझना, ओ
I just took a second to appreciate and just to process because you were singing it so well that मैंने सोचा भी नहीं कि ऑटो ट्यून है नहीं और ज़रूरत भी नहीं लगी, बट लिरिक्स आर सो डीप. थैंक यू. सो ये मुझे याद है, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मैं बहुत खुश थी कि मैं गाने बनाऊंगी अब. और तब ये तो मेरा शायद रोमांस वही था और ये गाना पहले मैंने, तो बस ये 4 लाइनें तब आई थी. फिर मैंने इत्मीनान से इसके ऊपर बैठ के इसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके बनाया था. कितना टाइम लगा था ये गाना बनने? तो यार जल्दी बन गया था मेरे से ना. जो जैसे आती है ना डिमांड, क्या थोड़ा एक आइटम वाला पेपी वाला ऐसा सा दो, उसमें टाइम लगता है. मस्ती खोरी वाले गानों में मेरे से ना सोलफुल जल्दी बन जाते हैं, बट जो मस्ती वाले कुड़ी पटाखा वाले दो, आइटम वाले दो या क्लब में बजने वाले दो, उसमें मुझे टाइम लगता है आस्था. Maybe because I think you are more of a जो शांत पर्सन, थोड़ी गहराइयों में सोचना पसंद ज़्यादा करती हैं. मे बी ये एक रीज़न हो सकता है बिकॉज पर्सनैलिटी ऑल्सो मैटर्स ना. आप किसके साथ ज़्यादा, आप कैसे मुझे ऐसा लगता था आस्था कि पर्सनैलिटी मैटर करती है, बट मैंने बहुत डीप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनिमल टाइप सॉन्ग्स बनाते हुए देखे. एनिमल टाइप आई मीन वेरी वाइल्ड बनाते हुए देखें. सो ये चीज़ ना रिसेंटली मेरी कॉन्ट्रोडिक्ट हुई. आई वॉज अ बिलीवर जस्ट लाइक वॉट यू सेड कि पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है. येस इट इज़ ट्रू, बट ऑल्सो सम पीपल आर सो स्किल्ड ना, वट एवर यू गिव दैम दे विल मेक सो ब्यूटिफुल. AR रहमान, उनके पॉप गाने, उर्वशी, मुकाबला, मतलब क्या गाने थे यार. मतलब ना ओ माई गॉड, वी स्टिल एस्पायर टू मेक सॉन्ग्स लाइक दैम. और उनके सोलफुल भी बहुत अच्छे हैं. छैया छैया मतलब कल्ट है ना, क्लासिक. सो बट वो पर्सनालिटी हमें, वी ऑल नो, आई थिंक इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी नाइस एंड सोबर. बट देखो ना व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स. इसी तरह आई रिसेंटली माइक पॉजनर के आई टुक अ पिल इन इबीजा. अभी नाउ ही इज़ सो ही इज़ कम. आई वाज चेकिंग आउट हिज Instagram. He's a very nice guy, next door, just like you and me, like how our elder brother would be like. And he's making amazing wild songs. Crazy. It's crazy. हाँ, एक time था where he said he was into drugs and all of that. But he admitted it, and the kind of honesty you see in these artists when they are posting things out on Instagram, it's very real. But हाँ, तो ये contradict हुई मेरी recently. सो पर्सनैलिटी का इफेक्ट पड़ता है, जिससे शायद ईजी होते हैं कुछ गाने बनाने. और बट सर्टेन आर्टिस्ट जस्ट मेक सॉन्ग्स, यू गिव देम एनी जॉनर. राइट. बट काफ़ी आर्टिस्ट ही मैंने भी सुना है दैट काफ़ी आर्टिस्ट ना ड्रग्स लेके इजीली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और अच्छे से उनमें ऐसा लगता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और इस वजह से दे टेक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस. व्हाट डू यू थिंक दैट लाइक ज़रूरी है? आस्था, I don't know, but I feel you're in some element today. हाँ, again a surprise question. हाँ, सारी surprise थे, but मुझे पता था आस्था has been always kind with me, तो सारे प्यारे प्यारे question आने हैं. But okay, so I can't help but being like I can't be anything but honest with you, आस्था. So एक समय था ऐसा when I was working as in the creative writer wing of Nadiadwala. उन्होंने कुछ समय के लिए स्टार्ट किया था वेयर आवर जॉब वॉज टू वर्क ऑन स्क्रिप्ट. वी वर समथिंग लाइक स्क्रिप्ट डॉक्टर्स. तो ऐसी एक फ्रेंड सर्कल बना था उस वक्त. तो आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक. उस समय इट्स बीन मैनी ईयर्स. उस समय मैं सोशलाइज जब करती थी कभी कभी अंडर लॉट ऑफ इंसिस्टेंस, ठीक है यार आई विल टेक अ स्मॉल रेड वाइन, और अभी और ये हो जाता था. बट इट यूज टू मेक मी लिटिल बिट अनवेल. नॉट बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ले ली है, बट थोड़ा भी लेती थी ना, आई हैव वीक गट. सो आई यूज टू फील वेरी अनवेल, ब्लोटिंग. द नेक्स्ट डे इवन इफ आई हैव टेकन लाइक हाफ अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन और एनीथिंग, मुझे अगले दिन फील होता था कुछ तो गलत गया है सिस्टम में. बट वो यू जस्ट लेट गो. तो उस सर्कल में मैंने बहुत बार ये फील किया कि उनके बीच में डिस्कशन होता था. मैं बहुत छोटी थी यार, आई वॉज हार्डली 19 फ्यू लाइक जब ये बात थी. एंड दे वर ऑल वेरी सीनियर इन देयर 30s, बात कर रहे हैं
कि यार ड्रैग लेने के बगैर उसके बाद तो मैंने जो मेलोडी बनाई और ये जो मैंने तीसरा ग्लास गया ना अंदर, जो भाई मैंने पेज लिखा है। हनी सिंह खुद कहते हैं कि 4 बॉटल वोडका के वक्त मैंने वोडका पी रहा था, पीते 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 मुझे लगा कि चलो गाना लिख देते हैं। आई डोंट नो दिस, ओह माय गॉड। सो उस वक्त वो लोग बोलते थे, तब उन्होंने मुझे बोला यार तू पीती भी नहीं है, तू फूकती भी नहीं है, तू लिखती कैसे है? मैंने बोला यार मुझे ज़रूरत ही नहीं फील होती। आई डोंट फील द नीड कि मुझे ये करने के लिए, मतलब लिखने के लिए या क्रिएटिवली कुछ करने के लिए ड्रिंक या स्मोक करना पड़ेगा। बट मैंने बहुत लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है जो बिलीवर्स हैं कि अगर वो ड्रिंक या स्मोक करते हैं तो उनकी आर्ट बेहतर निकलती है। आई पर्सनली फील, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ आस्था, कि ये मिथ है, ये मिथ है। अगर ऐसा ही होता तो मतलब मुझे तो लता जी की आवाज़ में ऐसा लगता है साक्षात सरस्वती है, तो ऐसा कभी होता ना, है ना। तो ज़रूरी नहीं है ना, कि कोई ड्रिंक या नशा करने के बाद ही आर्ट एक्सेंचुएट होके निकलती है। ये हो सकता है कि वो उन्हें बहुत कंफर्ट या उनकी जो टेंशन्स चल रही, मुझे नहीं पता। आई विल नेवर से कि आपकी आर्ट बेटर होती है। आई फील कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ इज़ नेवर गोइंग टू मेक योर आर्ट बेटर। बिकॉज जब मैं बात करी थी कुछ आर्टिस्ट के बारे में, स्पेशली पद्मश्री कैलाश खेर जी, जिनको मैंने थोड़ा ऑब्जर्व भी करने का मौका मिला लाइफ में, बिकॉज उनके साथ शोज़ करे हैं, डिसिप्लिन ऑफ फूड, discipline of living and dedication. So it is really one thing to learn from, you know, youngsters. नहीं यार, ड्रग्स या नशे करने से आपकी आर्ट बेटर नहीं होती, आप उसे और बदतर कर रहे हो। जब आपकी बॉडी आपके उससे हाथ से चली जाएगी, आप क्या आर्ट बनाओगे? Beautifully explained. आप क्या आर्ट बनाओगे? बल्कि जो लोग हैं चेन स्मोकर्स हैं, वो हमेशा दूसरों को बोलते हैं यार बहुत बुरी चीज़ है, कभी मत करना, मैं खुद छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यार ये मत करना। ये दे देमसेल्फ से कि मत करो ये, यू नो, दे देमसेल्फ स्ट्रगलिंग टू लीव दैट बैड हैबिट। सो दैट्स one thing. I mean, I'm amazed the questions you're throwing at me today, but yeah, it's a good thing you asked, Aska. Very nice. Because we also see you come from a young generation and we need to know your perspective as well. Because आजकल की जो generation है उन्हें मे भी यही लगता है कि यार यही जरिया है। तो जब आप जैसे लोग स्पीक अप करते हैं तो उनको शायद पता चलता है कि अच्छा, अगर ये बिना कुछ किए इतना अच्छा गाना बना सकती है तो शायद ज़रूरी ही नहीं है। So just not to promote those stuff, and I know that you are the right person I can ask this question to. So I wanted it to, you know, I wanted to come from you. I'm proud of you, Astha. Very less people are asking this. Very less people are throwing, you know, light on this topic. Definitely, एक ही रास्ता है जिससे आप better art कर सकते हो। ये करतब की कला है। Hard work is the key. अपनी skills पे ध्यान दो, रियाज पे ध्यान दो। इन्वेस्ट मोर नंबर ऑफ आवर्स इन योर आर्ट। कथक डांसर हो तो डांस सीखो, ज़्यादा सीखो, प्रैक्टिस करो। सिंगर हो, मुझे खुद सीखने की कितनी ज़रूरत है और बेटर करने के लिए। फॉर श्योर रास्ता, ड्रग्स एंड दीज थिंग्स डू नॉट मेक एनीवन अ बेटर आर्टिस्ट। 100%। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है, जस्ट टू लाइट डाउन द टॉपिक, कि पहली बार प्यार का एहसास कब हुआ? आई वॉज इन 9th। Yes. तो मतलब तो प्यार हो गया था या infatuation? I felt it was love back then. Like It was? I felt it was my first love, yeah. So it continued for some years. 9th. What happened? Like कैसे हुआ ये? थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा. I have to tell that? Yeah, only if you want to. Don't name the person. It's fine. We want to know more about stories. Yes. So I was in school. I fell in love with this guy who was a cricketer. Cricketer? Yeah. Is a cricketer now as well? Yes. Okay. He's a Ranji player now. Wow. Yeah. So yes, very decent person, very down to earth, very value laden. Oh, I don't know. I was also in sports. I have been under 19 silver medalist swimmer. And I was actively in sports. A lot of things I'm getting to know about you. You already know, I'm sure, but this is for Awesome TV. Yeah. So it was in school and it was during our practice thing, and I did not know by my liking, but I believe he was very much, he was a friend of my elder brother as well. So yeah, so I fell in love with him
and I guess he also, what guess? Obviously he fell in. Obviously. And yeah, so it carried for a few years until we just, you know, how life happened. Okay, then life happened. उसके बाद कभी दोबारा से प्यार को एक चांस दिया? क्यों प्यार से भरोसा उठ गया? यार म्यूजिक हो गया ना. So, अच्छा, so you are saying that music is love. But then you make such good songs. फील कर, आप तो खुद. आई फील माई फर्स्ट लव यार, मतलब वो इतना अच्छा और प्यारा था ना, सब कुछ बहुत अच्छा था. आई टोल्ड माई लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है. अगर मुझे चोट भी लगी, एक्सीडेंट भी लगी, मैं ठीक भी हो गई, मतलब वो मुझे बहुत एक ब्लेसिंग के तौर पे लगता है. बुरा भी कुछ होता है तो आई फील कि ठीक है यार, लाइक आई एम अ बिलीवर ना, तो बिलीवर अपने आप को समझा ही लेता है किसी तरह कि ये लाइफ में होना था. तो मंजूरी बहुत जल्दी आ जाती मेरे अंदर से कि इट्स ओके. पर बहुत लोग प्यार को दूसरा चांस क्यों नहीं देते? आई थिंक प्यार से भरोसा कभी भी उठना नहीं चाहिए. हाँ, इंसान से उठ सकता है, उस इंसान से उठ सकता है पर्टिकुलरली, बट अ लॉट ऑफ पीपल आई सी दे डू नॉट वांट टू गिव लव अनदर चांस. व्हाई डू यू थिंक सो? यार आई फील बिकॉज मैं स्पीकिंग फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग and I'm speaking on my behalf alone. Yeah, you see around our situationships, the shallowness of love, it's losing its depth. Everybody wants real love, but nobody is ready to give real love. सबको चाहिए ज़रूर, बट देने की हिम्मत नहीं रख रहा है ना कोई. सबको भरा हुआ ग्लास चाहिए, बट अपने आप खाली ग्लास हैं. तो आई फील एक वो रीज़न हो सकता है कि मेरे जो रीजंस हैं, एंड आई फील लैक ऑफ कमिटमेंट. ये जो कैजुअल सिचुएशनशिप जब तक चल रहा है अदरवाइज ठीक है. जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आ जाती है ना, इन लव पीपल वांट टू रन अवे एंड दे वांट टू एस्केप, आई फील. And also in this generation, I think it's very easy to get into casual and situationships, as you said. So people are like, they are not consistent with one person. They are like, ठीक है, हो गया ना ब्रेकअप. कितने लोग, दो लोग होते हैं. एक होता है जो प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहते दोबारा से, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है ब्रेकअप ही तो हुआ है, क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी नेक्स्ट डे पर. ये भी काफ़ी चीज़ें होती है, राइट? एक तो जो थॉट था ना, लाइक आई हैव सीन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कि लव को बहुत सीक्रेट मानते थे. इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग. मैरिज को सीक्रेट मानते थे. अब वो ना सीक्रेटनेस ऑफ थिंग्स हैव टेकन अ बैक सीट. तो वो भी एक शायद रीज़न है. आस्था, व्हाट डू यू थिंक? आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई माइंड नाउ, व्हाट कुड बी द रीजंस. बिकॉज लाइक यू आर सेइंग, कैजुअल डेटिंग बहुत ऑफन हो गया, सो दे फील ये नहीं तो कोई और. क्लोथ्स की तरह मान लिया ना सबको, तो लव तो हो ही नहीं रहा है. सब कुछ हो रहा है बट लव नहीं हो रहा है. लव नहीं हो रहा है. गेम खेल रहे हैं सब. I really like, I know that word cannot be used, but this generation is too, regarding love, it's just too deep. Yes, but मैं recently कुछ Gen Z, like I came across 14-15, there are teenagers, and I feel the amount of time and thinking they give to their mental health, वो बहुत ज़्यादा है यार. मतलब मुझे ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी लगा, अच्छा भी लगा. बहुत अच्छा लगा कि यार दे रियली केयर कि उनके मेंटल हेल्थ में क्या हो रहा है. इतना ध्यान दे रहे हैं वो खुद की थॉट क्या चल रहा है, स्पेशली बिकॉज दे हैव सो मच ऑन इंस्टाग्राम गिवन टू देम. आई स्टिल रिमेंबर एज अ व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, माय कोच यूज्ड टू से, अगर फेसबुक पे कोई सा बच्चा है वो इधर नहीं आएगा, उसको एक्स्ट्रा ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते थे. इंस्टाग्राम पे अगर कोई ये सब, मुझे कोई दिख गया, सबके अकाउंट्स, मतलब लिटरली इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप कर रहे हो, माई कोच यूज टू लाइक किल मी. किल मी मतलब ऑल ऑफ अस वाज देयर कि कोई सा दिख गया. और हमारे मतलब माई टीचर्स यूज टू से सारे फेलियर्स होंगे जो भी फेसबुक उस पे होगा, लाइक. तो इतना. और अब प्लेटफॉर्म्स देखो आप, people are getting education from YouTube and Instagram and अच्छे lectures, like good things also out there. बट ये जो जेन जी के, मतलब मैं कुछ टीनेजर से मिली थी, मुझे अच्छा लगा कि इंडिया अच्छी जनरेशन आ रही है, बट द अमाउंट ऑफ टाइम दे आर गिविंग टू देयर मेंटल हेल्थ. नहीं मुझे कुछ हो रहा है, आई नीड अ डे टू प्रोसेस इट. यार आई यूज टू बी क्रेजी बहुत. मैं 14-15 की तो बहुत अनस्टेबल एनर्जी थी, मतलब इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर कि मैं सोच ही नहीं सकती थी. लाइक आई यूज टू बी लाइक ये करना है, वो करना है, ये करना है. मेंटल हेल्थ के भाड़ में पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, वो टर्म ही हमें नहीं पता था, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट. और
इनके लिए ट्रॉमा बहुत ही आसान सा शब्द है जो बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ऐसा इम्पॉर्टेंट बात इधर ये है, मेरी दादी ने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, विदाउट गोइंग इनटू देम, एंड आई हैव टोल्ड यू माई मॉम हैज़ रेज्ड अस एज अ सिंगल पेरेंट, आई लॉस्ट माई फादर। मैंने इनके मुँह से, एंड आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स ने अथाह दुखों का सामना करके हमें रेज़ किया। हम जहाँ पे भी पहुँचे, अपने पेरेंट्स, अपने पापा मम्मी की कितने सैक्रिफाइसेस के बाद, मैंने इनके मुंह से कभी ट्रॉमा शब्द नहीं सुना होगा कि ये हमारी लाइफ में एक ट्रॉमा वाला एपिसोड था। बट ये ऑन अ फनी नोट ऑल्सो, ये लोग ट्रॉमा जैसे शब्द बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं। यार मैं इस बंदी से मिला यार, ये बड़ी ट्रोमेटिक थी। कहीं ना कहीं व्हेन यू से ऑल्सो दैट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, आप वो एनर्जीज फील करने लगते हो। फिर हो सकता है कि वो इतना हर्टफुल होगा भी नहीं, बट आपने सोच लिया अब आप डिप्रेस्ड हो। डिप्रेशन इज अ बिग टर्म, बहुत बड़ा शब्द है यार, ट्रॉमा, डिप्रेशन, और ये इतनी आसानी से अपनी डे टू डे लैंग्वेज, बिकॉज आई फील वर्ड्स हैव एनर्जी। ऑफ कोर्स 100%। एंड बचपन से मैं लाइक आई वाज लकी टू बी एक्सपोज टू वेरी गुड बुक्स एंड गुड रीड्स। वर्ड्स हैव रियली बिग डीप इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। और जितनी आसानी से ये लोग डिप्रेशन, ट्रॉमा ये सब यूज़ कर रहे हैं, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है। बंदी से मिल गया इस थिंग, नहीं यार वो टीचर बहुत टॉक्सिक है यार, मतलब यार आज तो मेरा ना बहुत, मतलब कैन यू बिलीव दैट? आई डेफिनेटली कैन। आई वाज लाइक ये क्या, मतलब कुछ भी। आई वाज लाइक वेरी मच कंसर्न्ड कि कुछ हुआ भी नहीं है और उतने में ही दे आर डेड। तो आई फेल्ट कि थोड़ा तो मेंटली एंड थोड़ा एग्जैक्टली मेरा थोड़ी चीज़ों का सामना करना भी आना चाहिए। बिकॉज हर चीज़ के लिए आप किसी के पास जा रहे हो थेरेपी के लिए, कितना जाओगे मतलब व्हेन लाइफ विल थ्रो स्टोन्स, तब क्या करोगे आप? सो आई फील दिस वाज वन थिंग सो ट्रू। सो काफ़ी ज़्यादा दे गिव, और किसी चीज़ को आप ज़्यादा सोचते हो ना, वो बेटर नहीं होती उससे। यू नीड टू जस्ट लेट। अभी ना बहुत प्रीचिंग होगी ये, मेरे को मुझे लग रहा है जेनजी, पता है ना, पूरे ऑसम टीवी के इस इंटरव्यू के नीचे ना जेनजी जागने से बड़ा ही से पता है आ रही हमें बताने के लिए ट्रॉमा, पर इसी के गाने पे हम वाइब भी कर रहे हैं फिर। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लव, व्हाट इज इट टू बी लाइक अ वुमन इन लव? Extremely committed. For me, when a girl or a female or a woman is in love, she's extremely committed. And if you could just elaborate a bit. I feel she gives it all. She gives it all. मतलब बोलते हैं ना, when I feel, I'm speaking for myself, I'm again saying, when a man is in love ना, उसे सारी दुनिया दिखने लगती है सुंदर। But when a female is in love, उसे बस वो अपना बंदा सारी दुनिया दिखने लगता है। You know, I feel that वो उसे अपना बंदा सारी दुनिया दिखने लगता है। And I feel that extremely committed is one thing. And I think, when a woman is in love, all she wants is attention and love from that particular person. Like, it has nothing to do with materialistic things. Definitely. If it is love, it has nothing and has never anything to do with materialistic gains or anything. It's just what I think a female in love would need, like you said, attention, love and respect. Yeah. That is the core. And that is the main thing. But when do you think that a man is in love? This is one thing I want to know from like all my people who I podcast, that how do you understand that a man is in love? How do you understand that a man is in love with you? Okay. So, jab without saying a person is able to understand and is there for you, is there for you unasked. देखो मेरी एक theory रही है लाइफ में, I'm too young to make theories, but you are all also you're in early 20s, I'm also in 20s. So but still हमारी अपनी theory रहती है ना आस्था, कि अगर आपने कुछ मांग लिया तो फिर वो मांगी हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। बिन मांगे जो मिलता है ना, वो मोती होता है। सो फ्रेंड्स से आप, फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको अनास्क्ड केयर अटेंशन होते हैं, दे आर देयर फॉर यू। बट व्हेन अ मैन स्पेसिफिकली फॉल्स इन लव विद वन लेडी, द वन थिंग इज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी ही स्टार्ट्स गिविंग यू, एंड अनआस्क्ड रिस्पेक्ट
and he's there for you when you really need in your lowest times. And he knows this is the time she needs this, and everything, it is not about money or like how people say कि girls को money से, material gain से या wealth से कुछ लेना दे. Being there for you means like किसी की ना presence ही सब कुछ होता है. Just, you know, suppose I'm having a bad day, आस्था आप आ ही जाओ, and you just sit in front of me and talk out on a glass of water, forget tea, coffee, वही बहुत होता है. इंसान सुन ले किसी को ना, वही बहुत होता है. बट हम सुनते ही नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अनास लव रिस्पेक्ट नहीं है, और जो पूछ के लव और रिस्पेक्ट मिलती है वो भीख बराबर होती है. ये मेरी थ्योरी है. अगर आपको लगातार किसी को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि यार आई एम योर गर्लफ्रेंड और आई एम योर यू नो पार्टनर और आई एम योर यू नो फियांसे, व्हाटएवर इट इज, and you're supposed to behave like this with me, you're supposed to give me this much time, at least you're supposed to at least behave this way with me, I think it's done. Where you have to constantly remind someone to behave in a loving manner, then you're able to see the scene, it looks so not love. So but where the man is unasked manner में behaving in a loved manner, giving love, respect, I think there the thing is done. Like even if he is busy, he needs to tell you that, hey, listen, I'll be busy for this time, but I will get back. I will talk to you once I'm free. But you know, guys usually even say that, oh, I was busy for the whole time, so I couldn't like text you or call you. I think that's just too much. Like एक text message करने में कितना time लग जाता है? Exactly. आस्था, I'll tell you one small thing. World War चल रहा था, ठीक है. सोल्जर जब चल रहा है, ऊपर से बॉम्ब शेलिंग हो रही है, सामने से फायरिंग हो रही है, वो नीचे बंकर में बैठ के 4 लेटर लिख रहा है, 4 लाइनों का एक लेटर लिख रहा है. ओके, फटाफट उसे अपनी पॉकेट में रख रहा है कि इफ़ आई डाई माई बॉडी गोज बैक, वो एक लेटर देख लेगी. ओके, सो आई मीन जिसे करना होता है, जिसकी नीयत और इंटेंट होती है, वो दिन में एक मैसेज तो कर ही लेगा. चाहे वो नासा पे गया हुआ साइंटिस्ट, नासा से भेज रही है वो मैसेज, भेज रही है ना टीम को, मून से भेज रहे हैं ना, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है. सो जिसे कम्युनिकेशन करना है उसे आएगा कि कैसे रखना है हेल्दी कम्युनिकेशन. एंड मुझे लगता है काफ़ी जो लड़कियां हैं वो ये चीज़ शेयर करने वाली है. और आई मीन वी आर हैविंग अ गर्ल टॉक, आई नो, एंड आई डोंट नो हाउ मच गाइज आर गोना लाइक इट, बट इट्स ओके. वी आर नॉट हियर सिटिंग टू प्लीज पीपल, सो Yeah, but it's very necessary. Again, talking about girl talk, female friendships कितनी important होती है? बहुत important होती है. आपके life में है? I have a female friend called Astha. Oh, that's so sweet. I didn't see that coming, but that's so sweet. Yeah, female friendship बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है. In what ways? Like because I feel friendship बहुत ज़रूरी होती है, और अगर female को female friendship हो जाए, for me I'm speaking, I love बिकॉज ये गाइज तो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट यू नो फिर बाद में कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं हो पाती. प्रोबेबिलिटीज ऑफ गाइज फॉलिंग इन लव विथ यू मोर, अगर आप ज़्यादा क्लोज हो जाओ किसी से, 90% चांसेस है. वही तो ना, वो आप फिर दायरा मेंटेन कर करके यार हेल्दी बाउंड्रीज कर, वो मेरे से नहीं हो पाता है फिर इसलिए फीमेल फ्रेंडशिप अच्छी होती हैं. यू नो, आई फील, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे ना रिलैक्स होके रहना है, अनफिल्टर्ड टॉक्स करने का मन हो तो गाय होते हैं तो मेरे को संभल के थोड़ा कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती है. यू नो, ऑब्वियसली मेरा थोड़ा कंडीशनिंग ओल्ड स्कूल है, सो आई हैव गाइज हु आर माई फ्रेंड्स एंड फ्रेंडली कॉलीग्स, बट मेरे आज सच फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड वाला कोई सीन नहीं है. सो आई लैक. पर ये तो सही है ना, तो बट आई इसके तो रील कट बनने चाहिए. लड़के बोलेंगे यार गेट योर सेल्फ एन, यार इसके कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है, मजे है. बिकॉज whoever will date you will be so lucky कि इसका मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. तो मुझे मेल बेस्ट फ्रेंड बनाने भी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लव इट यार, लव इट. इसलिए सो फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मच बेटर बिकॉज दे अल्टीमेटली दे बिकम लाइक योर सिस्टर यार, एंड ऑलमोस्ट मोर देन सिस्टर. आई हैव सीन इट हैपन. ऐसा बहुत बड़ा बिलीफ है. I've been seeing my mother also talk about it, my elder sister also talk about it कि गर्ल्स फ्रेंडशिप ज़्यादा चलती नहीं है. ये ब्रदरहुड ना भाई बहुत चलता है गाइज में, ऐसा कुछ नहीं है. इनकी बहुत भसड़ होती है. ये 10 लोगों को अपने फ्रेंड्स बुलाते हैं कि मेरा भी बहुत यार ये मेरा वहाँ का, हर कोई मेरा भाई है. इनका कोई नहीं है, वक्त पे इनके कोई काम नहीं आता है,
ठीक है, ये एक बंदी को कॉल करते यार मैं इधर फंसा हुआ हूँ, आ जा यार किसी तरह, तो इनका ना कोई काम नहीं आता है। ये इनके दारू पीने के फ्रेंड्स हैं, सुत्ते मारने के फ्रेंड्स हैं, फिल्म्स जाने के लिए फ्रेंड्स मिलेंगे इन्हें, बट इनके काम के टाइम पे नहीं आएंगे, तो इनके दिखेंगे बहुत बड़ा सर्कल, बट रियली गर्ल्स के जो फ्रेंड्स बनती है ना, रियल वाली बनती हैं। Guys are always vulnerable in front of girls, in front of their girl. Especially if a guy wants to cry, he would not call his bro. He would call his girlfriend and maybe just open up in front of her. Like guys, and guys act babyish also in front of girls. Like there are guys who would not act like मैंने that. एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मुझे पता नहीं, बट मे बी I'll believe you. I think you should soon. I can't handle people. What kind of a guy do you want? या फिलहाल तो मन में कुछ नहीं है. I really want to focus on my career. कुछ तो होगा that I want to marry a kind of a guy who's sweet, who's loyal. हर लड़की I have very mixed emotions about. एक तो मुझे casual dating नहीं करनी कभी भी, मुझे बिना मतलब के अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे अभी मेरे दिमाग में मेरे एक ही चीज़ है, that is music and to focus on my art, and I am into films also, so that's it. But and marriage को लेके मेरे बहुत mixed emotions हैं. I feel as an institution it is failing. Okay. Yeah, marriage as an institution is failing. Why do you feel? Multiple reasons are there. Some other day. Some other day. So we need to schedule a podcast on यार बहुत ज़्यादा यार मेरे ऊपर ना फायरिंग होने लगेगी. So I feel it is a beautiful institution. It is a very very good institution, but I feel it is failing. I feel it is failing, and I don't know why. Options are easy. Divorce has become easy. Whatever picture draw होके आ रही है ना, it's scary. तो मतलब बोलते हैं ना, मैदान में उतरने से पहले मैदान देख के बंदा भाग रहा है, तो मेरा वो वाली हालत है. अगर मैरिज एक मैदान है, उसे देख के मैं दूर से भाग रही हूँ, भाई मेरे बस की बात नहीं है ये. And obviously I am not looking for any relationship. I'm not looking for anything other than my art and work and career. These things can wait. Of course, because your art and your career will stay forever with you no matter what. That is one thing which I think. It's not because of that because it will stay. Because I want to focus on. I know you also personally how much you are dedicated towards your family and apart from your career also. Same way कि यार मेरे पेरेंट्स ने ना और मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं यार. जहाँ तक भी मैं आ पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, तो बनने के बाद या मैं जो भी बनने के बाद करूँ, आई रियली वॉन्ट टू गिव इट बैक. जो भी थोड़ा बहुत, हम अपनी मम्मी पापा का ऋण कभी नहीं उतार पाते, बट एटलीस्ट समथिंग आई रियली वॉन्ट टू गिव लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू माई मदर. माई फादर इज़ देयर अप इन द हेवन्स. So and he's smiling. I always tell you this, right? Don't I? Yes. So I want to focus on that. Giving a lot of happiness to my mom, my parents. That's about it, and career. फिलहाल दिमाग में कोई लड़का लुड़का यार अभी तक. अच्छा, मैंने अभी कमिंग बैक टू योर क्राफ्ट, मैं एक लिस्ट देख रही थी आपकी, जहाँ पर आपने मुझे थोड़ा बहुत मुझे एक्सक्लूसिव पता है, थोड़ा बहुत मुझे एक्सक्लूसिव मिला है, आपसे ही मिला है, बट हाँ, मैं आपकी एक लिस्ट देख रही थी जहाँ पर आपने बहुत अलग अलग तरीके से गाने लिखे हैं इस बार. एंड वेदर इट्स सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, लव, रोमांस, और मे बी अ हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग इज कवर्ड. एंड something very close to your heart regarding your dad is also there. And I just can't wait to tune into those songs and all. Yeah, but can you just tell me that क्या सोचकर आपने इस तरह की एक playlist बनाई है? Asta, because I've been making my last album had songs that they were mostly pop, like Party Numbers, Paris, Latifa, sort of like gun culture. Even other songs, Dolly was a happy-go-lucky girl, feeling very happy, found the groom of her life. तो सारे ही बड़ी वैसे गाने थे, मस्तीखोर, पार्टी, प्रपोज कर दे यार, नहीं कर रहा भाड़ में जा, Love it. तो ऐसे वाले थे. एक दो गाने थे उसमें मर्यादा and how could you, they were serious. Others were like really having fun, मतलब literally chilling and fun of life वाला गाने थे. तो this time now my mom and bro were like,
यार तू कुछ सोलफुल गाने क्यों नहीं बनाती, अच्छे तो तेरे बुल्ला के अंदर रांझना शिकायतें, वैसे वाले बनाना। मैं बोल जब मैं वैसे वाले बना रही थी आप बोल रहे थे सीरियस गाने मत बना, नहीं यार इतने सीरियस नहीं बना यार, आई यू ओके एंड एवरीथिंग। तो ये क्या मतलब होता है यार। देन ऑलरेडी इन दिस लेटेस्ट एल्बम 3 सॉन्ग्स ऐसे हैं जो मेरे ऑलरेडी बने हुए थे, आई एम जस्ट रीवर्किंग ऑन दैम, redefining them. The song that I have shared with you, it is about my father and how I feel about that. So that was, I had written it long ago. This time I want to make it little bit of personal space वाले गाने। इस बारी मैं ये नहीं सोच रही कि ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए यू नो दैट AP करण औजला टाइप ऑफ जॉनर, वो जो मेरा रीबूट का था वो जॉनर वही था, यू नो पार्टी पंक सॉन्ग्स। बट इस बारी में थोड़ा सा पर्सनल स्पेस में विदाउट थिंकिंग कि ऑडियंसेस को क्या चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, ये गाना हिट ऐसा है, हिट फॉर्मूला ये है, दिलजीत ने ऐसा निकाला है तो इसी जॉनर में करते हैं, या ऑडियंस पे 4 महीने से इंस्टा पे ये वायरल चल रहा है, तो वो सब सोचे बिना ये इस बारी में आई एम गोइंग विद अ वेरी पर्सनल इनसाइट। तो ये रीज़न है, जस्ट इन आवर कॉल। हाउ वाज द प्रोसेस? इट्स टाइम टेकिंग फर्स्ट, सेकेंड बिकॉज जब आप कोई पर्सनल गाना लेके बैठते हो ना अपनी टीम के साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू जज यू। रिस्क फैक्टर इज थोड़ा सा वो इमोशनली एक इमोशनल न्यूडिटी, एक आई डोंट नो इफ़ आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट, मुझे और कोई शब्द नहीं आ रहा है अभी याद है, कि आपके अंदर की सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि आप अच्छा यार यू वेन एंड देन दे हैव क्वेश्चंस। तो ऐसा हुआ था जब आपने पापा को लूज़ किया था, तो मैंने बोला यार कोई भी एक ही शर्त है, मैं थोड़े से 3-4 गाने ऐसे कर रही हूँ, मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो वो जब गाना बनाया था तो दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो तुम इतनी छोटी थी, ऐसे ही हो गया था, तो घर में ये सब हो रहा था, तो मैंने बोला यार हम नहीं करेंगे। तो वो प्रोसेस बहुत इमोशनली थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज मेरे साथ जो टीम में काम करते हैं दे आर लाइक माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उनके मन में बहुत सवाल थे। और स्पेशली जब मैंने हार्ट ब्रेक का एक गाना बनाया तो उसमें देवर आस्किंग कि इतना हुआ था तो किसी को भी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, तो ऐसा क्या हुआ, दोबारा बात नहीं करी। आई एम सो सॉरी यू गाइस। नो इट्स ओके टेक योर टाइम। सो कुछ 2-3 गाने ऐसे थे तो where they felt that you know then we were like you know let's just sit separately, दूर बैठते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग कुछ तीर मार देंगे, बट दे वर वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट्स। तो ये प्रोसेस वॉज वेरी ऑनेस्ट, टाइम टेकिंग एंड इमोशनल फॉर द एंटायर टीम। सो टू समराइज, sending you all the positivity and I hope that गाना वायरल हो for all the obvious reasons, because बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या सिंगल पेरेंट है उनके, तो उनके लिए ये जो आप गाना बना रहे हो, ऐसे गाने पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दे वुड फील कंप्लीट, दैट्स ऑल आई कैन से। सो एक गाना है पाथफाइंडर, तो उसमें था कि लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड लॉट गुड वर्क एंड व्हेन आई केम इन मुंबई आई थॉट मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने तो इंटरनेशनल फिल्म में भी काम किया है, मुझे तो बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। तो एंड आई गॉट इनटू दिस फील्ड अगेंस्ट माई मॉम्स विश, बिकॉज शी वांटेड मी टू, मेरे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन लेटर्स थे कि आप वो क्यों कर रहे हो, आप तो अच्छा पढ़ते हो, आपको अच्छी रैंक आई है, अच्छी परसेंटाइल आई है, आप क्यों म्यूज़िक और फिल्म्स में जाना चाह रहे हो। तो और आप अगर ऐसा कर रहे हो तो एक काम करो, देन फ्रॉम ईयर आफ्टर यूर ऑन योर ओन। सो देयर वाज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज अ कट ऑफ एंड आई हैड ओनली गुड अमाउंट ऑफ मनी, या तो मैं मीटिंग्स कर सकती हूँ या मैं पीजी ले सकती हूँ, तो मेरे पास उतना ही था। और तो मैं 10 दिन लोखंडवाला एक टेम्पल में रही थी, मेरा सूटकेस वहीं था, और जहाँ पे वो चेयर वेयर वो सब रखते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट करके बोला था मैं किसी तरह बस हेड डाउन करके कमर लगा के आई वुड जस्ट स्लीप। तो आई रिमेंबर, तो दैट सॉन्ग वाज अबाउट दिस होल जर्नी। इतना पेनफुल नहीं है यार, लोगों के साथ तो बहुत, आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी ब्लेस्ड। लोगों के साथ तो उनकी जर्नीज इतनी पेनफुल होती हैं, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। और मैं तो मानती हूँ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड में, थोड़ा भी है ना उसको अगर आप बहुत
ऐसे करके देखो ना कि यही भगवान का प्रसाद है, ये यही ऊपर से आई फील वो अपने आप में बहुत बरकत देता है। सर माथे कुछ लगा के आप दो तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। आई एम अ बिलीवर ऑफ दैट। तो जब उनको पता चला तुम 10 दिन टेम्पल में रहे एंड फिर उसके बाद एंड समबडी लाइक यू हु हैड डन सो मच गुड वर्क एंड इतना अच्छा प्रोफाइल था, मैंने बोला इट टुक टाइम ना। मैं गूगल कर करके एड्रेसेस देखती थी, अच्छा इनके पास जाना है, बिकॉज आई हैड नोबडी हियर कि जो मुझे किसी का नंबर दे दे कि मेरे पास ये यार नंबर चाहिए होता है ना अपना प्रोफाइल भेजने के लिए भी। तो मैं डोर टू डोर जाती थी और पूछती थी कि है लाइक ये बोला है कि ये रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस हैं या ये प्रोडक्शन है, आज सर नहीं आए हैं, एड्रेस बदल गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया रामनगर 2 में। अब रामनगर 1 और 2 में बड़ा कंफ्यूज हो जाऊँ, पहली बार नहीं समझ आता है। देयर इज़ अ प्लेस इन यारी रोड वर्सोवा इन मुंबई वेयर गुड नंबर ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज आर देयर। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, एक भी नंबर नहीं होता था। तो गूगल कर करके एड्रेस जाओगे, वो पुराना एड्रेस पड़ा है, इतने में शाम हो जाती थी। तो आई हैड ओनली दैट मच मनी, या तो मैं आई कुड स्टे इन अ पीजी या मैं 3-4 दिन मीटिंग्स कर सकती थी। तो 10-12 दिन 15 दिन मैं टेम्पल में रही। इतने में मुझे उस मीटिंग्स में से अच्छा काम मिल गया। देन आई रिक्वेस्टेड वन आंटी टू गिव मी पीजी और मैंने बोला आई प्रॉमिस यू आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मुझे इस काम के बाद पैसे मिल जाएंगे, मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई फाउंड अच्छे को अच्छा मिल ही जाता है। आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, शी गेव मी, आंटी थे वो, उन्होंने मुझे पीजी पे रखा, मैंने उनको दिया। बट आई जस्ट Are you still in touch with her? यस डेफिनेटली। Wow. And I'm sure she's so proud of you now. बट इट टुक मी टाइम कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने अंदर कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि इंसान अपनी कला से भी कमा सकता है, इज्जत की कमाई। तो ये है। What an inspiring story. And अब तो ये सारी चीज़ें हम आपके म्यूज़िक में सुनने वाले हैं। And Music में I'm most of the time having fun, but yes. yeah. Take your moment. This is your moment. Relax. So now that we are coming towards an end, I would not tell you to sing because हमने already Ranjana सुन लिया and I'm still processing that song and that vibe. But जब आपका गाना आ जाएगा तो सबसे पहले आप हमारे साथ share करना. Yes, yes. Because we wanna, of course, we wanna hear you and बहुत से अलग अलग गाने हैं जैसे कि आपने भी कहा और जैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। आई एम श्योर जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए। बस ये बताइए कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका गाना है? So by April and March end, yes, by March end I am dropping my. ओह वाओ, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, काफ़ी जल्दी आने वाला है। And we all are excited, so all the very best, Neha. And as I always say that it's wonderful whenever you are here, and next time Likewise. I just love being on Awesome, and especially it becomes nice and more cozy and comfortable with you, Astha, because it's always a very honest and authentic experience. Whenever we are having a conversation, it doesn't feel like an interview or a podcast, it feels like two really close souls talking. So I really like that vibe. At times even I do forget that, oh, we have cameras here, and we were just going on and the conversation was really authentic, and I wish that a lot of people hear this. And yes. Likewise, the experience was beautiful. Yeah. I'm still actually submerged in the conversation we just had, and I didn't even come to know we have reached the end of the podcast. Oh my God. This has been special. It was really lovely having you, just like always. And all the very best, all the very best. Thank you so much. Thank you. So, dear all, this is Neto the artist. Thank you so much for having me on Awesome TV, and I am excited to launch my next album, God Needs Help. Yay. Thank you. Hi, this is Neha Tomar. My stage name is Neto the artist. You can follow me on Instagram with the same name, Neto the Artist, and YouTube, Neto the Artist Official. And you're watching me on Awesome TV with host Astha. Thank you so much.